Priya Chauhan and I'm back with a new lesson based on pronoun. Guys, we are doing a series of part of speech in which we completed noun entirely. Now we are doing pronoun. पिछले 2-3 वीडियोस में, शायद 4 वीडियो में प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को हमने सीखा. साथ ही हमने जाना कि प्रोनाउन की नीड क्यों होती है, क्यों हम नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन का यूज करते हैं. देन वी लर्न अबाउट पर्सनल प्रोनाउन एंड वी न्यू व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल एंड व्हाट आर द 3 persons. We also knew about the cases of pronoun like subjective case, objective case, possessive case. And in a separate video, we tried to understand the third person, it, with all its function, uses in the sentences. Dear students, if you missed those videos, I would suggest please watch. After watching, you'll realize where were you and how ahead you are now. I mean, how much you improved after watching those videos. Today, I'm going to teach you one important type of pronoun, demonstrative pronoun, जिसमें this, that, these, those आते हैं. Maybe hearing this, that, these, those, you all will be thinking this is very basic topic and from elementary level you learnt it, you read it, then why ma'am is teaching it? It's quite true. It is very basic topic. But always remember guys, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं और कभी हम जिन चीज़ों को लेस इम्पॉर्टेंट समझकर इग्नोर कर देते हैं वो इन फ्यूचर मोर इम्पॉर्टेंट प्रूव्ड होती हैं. होपफुली यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट. इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फर्स्ट we'll brush up our basic point related this, that, these, those. Then we'll learn some very important fact may be unknown for you. So stay with me till the end of video. Alright? Then let's start. First, we try to understand the word demonstration because its meaning itself make it clear. What is mean by demonstrative? वर्ड डिमोस्ट्रेशन का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग स्वयं में क्लियर कर देता है कि ये क्या सेंस रखता है. डिमोस्ट्रेशन वर्ड लैटिन वर्ड डिमोस्ट्रर से ड्राइव्ड है, जिसका मीन्स होता है टू शो और एक्सप्लेन, दिखाना या वर्णन करना. यही वर्ग तो हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पाते हैं. डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट को शो करता है, एक तरह से उसके बारे में डेमो देता है या संकेत करता है, आई मीन पॉइंट आउट करता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको वर्बली समझने की कोशिश करते हैं. जब हम कहते हैं यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कार को शो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह कार मेरी है, दिस इज माई कार. इसी तरह से हम कहते हैं दीज आर माई पेंसिल्स. ओके, तो हम क्या दिखाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ पेंसिल्स वो मेरी हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, we try to define demonstrative pronoun in appropriate words. Like demonstrative pronouns points out to the specific person, place, animal or thing. Demonstrative pronoun संकेत करता है, point out करता है विशेष persons को, places को, animals को और things को. Words like this, that, these, those are used as demonstrative pronoun. Besides these words, some more words also used as demonstrative pronoun like such, one, same. But in books we rarely find description of these words. But here we will also learn about the use of such, one, same in the sentences.
But first we try to understand these four, this, that, these, those. This is used for singular, one in number, and it is near, close to hand. जब कोई चीज़ पास में होती है और सिंगुलर होती है तो उस थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दिस इज क्यूट बेबी, इट मीन्स बेबी इज वेरी नियर. ओके, वन बेबी है जो वेरी नियर है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है दिस. एंड दिस इज माई कार, इसका मीन्स एक कार है जो हमारे बहुत पास में खड़ी है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है दिस. नाउ वी टेक these. These also points out those things, animals, people, object which are near but plural in number. Okay, वो चीज़ें जो प्लूरल होती हैं लेकिन पास में होती हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए these का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, these are my pencils और these are cute babies. यहाँ पर these पेंसिल्स को पॉइंट आउट कर रहा है या फिर दीज बेबीज को पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि प्लूरल हैं दोनों लेकिन क्लोज हैं, क्लोज टू हैंड हैं, वेरी नियर हैं. नाउ दैट इज यूज फॉर पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट विच आर फार ऑफ बट सिंगुलर इन नंबर. दैट उन थिंग्स, ऑब्जेक्ट या पर्सन्स के लिए यूज होता है जो हमसे दूर होते हैं लेकिन सिंगुलर इन नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी कार है, यहाँ पर कार वह है यानी दैट से पॉइंट आउट करेंगे, कार हमसे दूर खड़ी है, हमारे पास नहीं है, राइट. इसी तरह से दैट इज माई हाउस, जो घर है उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो हमसे दूर है, इट इज नॉट नियर टू अस, इट इज फार ऑफ. एंड those is used for persons, animals or objects which are plural in number and far off. those उन things को point out करता है जो plural number में होते हैं और दूर होते हैं. For example, those are trees. Here trees हमसे दूर हैं, right? Likewise, those are dogs. Here, those points out some dogs which are far off to us. Okay? Thus, we can conclude this and these are for near. This or these near की things के लिए, that and those for far. That and those दूर की चीज़ों के लिए. Dear student, one more thing. This and that is used for singular persons, animal और object. Okay, this और that का प्रयोग singular के लिए होता है, जबकि these और those are used for plural people, object और animal. Right? Similar fact you can find in this flowchart. Have a look on it. It is quite interesting to learn these facts through it. I'm right? In starting, I told you कि इन चार these, those, this, that वर्ड्स के अलावा भी कुछ शब्द हैं जिनको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, लाइक सच, सेम, वन, एटसेट्रा. इनके यूज को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वर्बली समझने की कोशिश करते हैं. हिंदी में हम अक्सर बोलते हैं कैसे आदमी हो आप, है ना, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे सच ए मैन यू आर, है ना. इस तरह के एक्सप्रेशन आपने जनरली सुने होंगे. तो यहाँ पर जो सच वर्ड है वो मैन को डिमोस्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, एज ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन उसका यूज हुआ है. इसी तरह से आप किसी की ड्रेस देखते हैं, आपको वो बहुत पसंद आती है, तो आप एक्सप्रेशन देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आई बाय सेम ड्रेस. तो यहाँ पर जो सेम वर्ड है वो ड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, एज ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. इसी तरह से हिंदी में हम अक्सर एक शब्द बहुत बोलते हैं, काली वाली कार या लाल वाली शर्ट, है ना.
इस तरह से बोलते हैं। तो हिंदी में ये जो वाला या वाली बोला जाता है उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लेट्स सी। जैसे कुछ कार्स हैं, आपसे आपकी चॉइस पूछी गई तो आप क्या बोलते हैं, आई लाइक ब्लैक वन। या फिर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर से कहते हैं प्लीज़ भैया वो रेड वन निकाल दीजिए या ब्लैक वन शर्ट निकाल दीजिए, है ना। इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं। तो इस तरह से इन वर्ड्स को एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, here we are going to learn some important facts related demonstrative pronoun. First one, demonstrative pronouns always identify nouns whether those nouns are named specifically or not. जब हमने demonstrative pronoun की definition prepare की थी तो एक word specific आया था उसमें, मतलब जो things specific होती हैं वो demonstrate होती हैं demonstrative pronoun के थ्रू। लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी। कुछ कंडीशंस में नॉट स्पेसिफाइड थिंग्स भी डिमोन्स्ट्रेट होती हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम और अच्छे से समझेंगे इस फैक्ट को। आई कांट बिलीव दिस या डू यू बिलीव दिस। हियर यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज दिस। तुम्हें कोई आइडिया है, आपको कोई आइडिया हो रहा है कि व्हाट इज दिस, ये दिस यहाँ पर क्या है। बट इट इज डेफिनेटली समथिंग द राइटर कांट बिलीव। कुछ ऐसा है जिस पर राइटर को विश्वास नहीं है। इट एग्जिस्ट इवन दो वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट एग्जिस्ट। सो इट इज क्लियर नॉट स्पेसिफाइड थिंग्स also can be point out by demonstrative pronoun. Okay, now I'm taking next fact. Demonstrative pronoun can be used as subject or object in the sentence. Demonstrative pronoun as a subject or as a object, दोनों तरह से sentence में use किया। Now most confusing things. Listen guys, demonstrative adjectives and demonstrative pronouns दोनों में this, that, these, those यही वर्ड्स आते हैं। केवल इनके यूज में, सेंटेंस में इनके यूज करने के तरीके में डिफरेंस होता है। उसी के बेस पर हम जान पाते हैं कि ये यहाँ पर एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है या फिर ये यहाँ पर एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि द वर्ड्स आर आइडेंटिकल, दोनों के वर्ड सेम है। लेकिन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नाउन को क्वालिफाई करता है। हमेशा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद में नाउन आएगा, लेकिन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस स्टैंड अलोन या उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, वी सी सम एग्जांपल हियर। दिस कार इज ब्लैक। यहाँ पर कार एक नाउन है, उसके आगे दिस आया है, यानी यहाँ पर दिस वर्ड एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज ब्लैक कार, यहाँ पर दिस वर्ड एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। इसी तरह दीज पेन्स आर न्यू, यहाँ पर दीज वर्ड क्योंकि पेन्स के आगे आया है और पेन्स एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर दीज वर्ड एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। वहीं पर दीज आर न्यू पेन्स, यहाँ पर दीज अलोन आया है, उसके बाद मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आई है, तो यहाँ पर दीज एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। उसी तरह से दोज फ्लावर्स आर रेड, तो यहाँ पर दोज क्योंकि फ्लावर्स के आगे आया, फ्लावर एक नाउन है, तो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। वहीं पर दोज आर रेड फ्लावर्स, तो यहाँ पर दोज अलोन आया है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसलिए यहाँ पर those word as a demonstrative pronoun यूज हुआ है। I hope you got it. Guys, I tried my best to explain every point related to demonstrative pronoun. So watch video completely and enhance your grammar skill. Before wrapping up, I would like to say something. After watching this video, if you really find this is useful, then
like, comment, share and subscribe. Okay? Keep practicing, keep learning and keep smiling. We will see you soon in the next video. Bye.